Yeah. Look at this question again. This was 40 degrees, and question was that a light incident ray falls at an angle of theta. We need to find theta so that after reflection from the second mirror, the reflected ray becomes vertical. First method is this. This is a normal. Let's call it M1. Let's say it falls like this. We can draw a better figure if we make it like this. This angle is 40 degrees. This is the incident ray, this is the reflected ray, and then draw another normal at this point. Call it N2. And then reflected ray goes like this. I told you that we should start from known and towards the unknown. Again, इसमें difficulty level दोनों तरफ से same ही आएगा. कहानी है क्या ये थीटा था. अगर ये थीटा है अपने पास, अपने को पता है कि भाई first of all we can directly say this angle is also what? This and this they are saying this is theta, this is also theta. ये थीटा है तुम्हारा, ये 40 है. This inner angle is what? 50. 40, 50. ये 50 है तुम्हारा, and this is normal N2. इसका मतलब है ये कितना बन गया? 40 degrees. ये समझ में आ गया? अगर ये 40 degrees है, this is normal and this is the reflected ray. This is the incident ray. That means आपको पता है कि ये वाला एंगल है, ये भी कितना होगा भाई? 40 कितना हो गया भाई? अगर ये 80 हो चुका है तो फिर थीटा के पास एक ही ऑप्शन बचा कितना? 10 डिग्रीज. ये हो गया फर्स्ट मेथड. आप लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी यूज कर लो और डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चन लेवल सेम. नाउ हमने इसको करने के लिए जो सेकंड मेथड डेवलप किया था लास्ट लेक्चर में, वहां कहानी ये थी. हमने एक रैंडम फिगर ड्रॉ किया. हमने बोला कि भाई ये थीटा है and therefore this angle is what? 90 minus theta. What is deviation at this point? 180 minus 2 times 90 minus theta. हमने ये डेल्टा 1 लिखा. इसका आइडिया रहा ठीक है. अब मैं ऐसा फिगर ड्रॉ नहीं कर रहा हूं बिकॉज द फर्स्ट part of the question हमने जो चीज ड्रॉ की थी, it was something both reflections were clockwise. So let's take that same manner. इधर आया, normal ड्रॉ किया, and then it goes in this direction. कहाँ जा रहा है अपने को मतलब नहीं, because हम डायरेक्ट वैल्यूज के थ्रू फाइंड करना चाहते हैं. So this is your second normal. अभी को ये एंगल पता करना है. अगर ये पता लग जाएगा then we can find what? Delta 2, which will be 180 minus 2 times this angle. ये एंगल कितना है अपना? This is 40. This is what? 50. ये पूरा 50 है तुम्हारा. Again the whole angle this much. ये पूरा का पूरा एंगल कितना बन गया? 40 degrees.
This is 40, this is also 40. This much is what? Theta. This theta. ये थीटा है, therefore this is also what? थीटा. अगर ये थीटा है तो फिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रह जाएगा? 40. This is theta. First of all, you need to find this. ये थीटा है तो फिर ये एंगल कितना बना? 90 माइनस थीटा. ये 40 था तो ये कितना बना? 90 माइनस थीटा. अब ये 90 माइनस थीटा है तुम्हारा और टोटल एंगल कितना बना हुआ है? 40. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है this will be what? 40 minus 90 minus theta. कौन में आ रहा होगा भैया? ये 40 है पूरा. This much is 90 minus theta, so you get this. This is coming minus of 50 plus theta. जो अपना delta 2 आएगा, delta 2 will be 180 minus 2 times this. Theta minus 50. Then हमने delta total निकाला था. Delta total will be what? Delta 1 plus delta 2. और delta 1 plus delta 2 जो हम कर रहे थे तो वो क्या बन जाएगा? 180. I'm giving this 180 अभी ऐसे ही minus 2 theta minus minus plus, that is 100. Delta 1 plus 180 minus 180 minus minus plus 2 theta. That was delta 1 plus delta 2. अब ये जो delta 1 plus delta 2 था, अगर लाइट ये बोल रही है अपने को that light falls like this is the incident ray, and then we say that it becomes perpendicular to what? First mirror. तो पक्की बात है कि ये ऐसे जाएगा. It should move like this. This is the incident ray, and then the final refracted ray is this, which is shown in this. But tell me, is this angle of deviation? No, that's not the angle of deviation. This is not the angle of deviation. What is the angle of deviation? देखना, लाइट ऐसे आ रही है, लाइट ऐसे आने के बाद इधर, and then it goes like this. अब इसमें क्या हो रहा है बता रही, इस फिगर के हिसाब से कहानी ये बनी है. लाइट ऐसे आई, and then it completes one clockwise turn, and then goes in this direction. So how much is the angle of deviation? अगर अपने को पता करना है in terms of theta, तो हमसे क्या बोलेंगे? हमने बोला कि इस angle of deviation के लिए first of all incident ray को आगे बढ़ा दो. Incident ray, and this is the final refracted ray. Let me write R2 इसके लिए, ठीक है? ये incident ray थी, ये तुम्हारा theta था. This is not the angle of deviation. What is the angle of deviation? आप बोल रहे हो लाइट ऐसे आ रही है, and then it goes like this. जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन बना वो बेसिकली ये बना, this much. Is this black clockwise thing clear? ऐसे आना, इधर 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 किधर, मैं बोला इधर, so this is the angle of deviation. अब ये तुम्हारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है in terms of थीटा कितना बन जाएगा? ये बनेगा तुम्हारा, ये थीटा है, इसका मतलब ये ऑपोजिट एंगल भी कितना है तेरा? थीटा. यहां से दिस मच इज व्हाट? 270 प्लस कितना हो रहा है? 270 प्लस थीटा. हां इधर 90, another 90, another 90, and this theta. This is coming 270 plus what? Theta. ये जो पूरी चीज है ये कितनी बननी चाहिए? 270 प्लस थीटा. कैंसिलेशन करते हैं, 180 and 180 gone, 2 theta and 2 theta gone. ये क्या लिखा हुआ है? Plus 100, 280 minus 270. Theta is coming directly what? 10 degrees. अब last lecture में गड़बड़ क्या हुई थी? I cancelled this 180 with this 180.
And if you remember, हमने जो डेल्टा टोटल था और ये वाला 180 यहाँ से कैंसिल किया था, यहाँ पर एक 180 था. If you see your notes and all, 180 से 180 कैंसिल हो गया था. And while I was dealing with the second method, I simply take the delta total in terms of 100 degrees. अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पर लिखा था सेकंड मेथड एक लाइन में डेल्टा टोटल शायद मैंने 100 लिखा था and that was coming what 90 plus theta. ये क्या था 90 और ये क्या था. Incorrectly we took the angle of deviation as what 90 plus. वो जो 90 plus theta था और इधर 100 तो फिर से क्या हो गया था बैलेंस. That's what I said कि हमने यहाँ एक 180 मिस किया और यहाँ एक 180 मिस किया. That 180 plus 90 becomes what 270. इसलिए वो वैल्यू क्या हो गई थी एडजस्ट. But that's not the correct way of answering that question. उस पार्ट पर जाना उसको कट कर देना साइड में क्रॉस. We have not taken angle of deviation correctly and then write down this. That's the correct method. Only in the second part. First part is correct. Look here again. This is the incident rate. That's the incident rate. And this is the refracted rate. This is theta. What is this? 90 minus. Can I take this 90 minus theta also as angle of deviation? With proper sign. Look at the sign convention we have used in delta 1 and delta 2. What is this clock? This is also. लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि ये इंसिडेंट रे है और ये आपकी फाइनल रिफ्रैक्टेड रे है, या तो आप ऐसा करोगे या फिर आप ऐसे जाओ. अगर आप ऐसे जाओगे तो आप 270 प्लस थीटा की जगह उसे क्या लिखोगे माइनस ऑफ 90 माइनस. ये समझ में आ गया. Either go this way and then take it positive क्योंकि आपने यहाँ पर clock लिया हुआ है. ये delta 1 clock, delta 2 is also clock. तो delta total ऐसा बनना चाहिए. तो अगर आप यहाँ से जा रहे हो आपने किसी एंगल को बोला कि वो 270 है, इधर से जाओगे तो क्या बोलोगे उसको माइनस ऑफ 90. चेक करो देखो सेम आंसर आ रहा है फिर से. लेकिन फील करना पड़ेगा सेम के लिए छोटा सा. इधर सारे कैंसिलेशन हो गए. लेफ्ट साइड में क्या बचा हुआ है 180 प्लस 100 इज व्हाट 280. 280 प्लस 90 3 and right side में क्या बचा. Can you see the same answer? 370 degrees is what 360 plus 10 and that gives you again same value. 360 का कोई मतलब ही नहीं है हमारे लिए. केवल डेविएशन कितना है एंगल थीटा कितना है 10. 360 का मतलब ये है कि आपने बोला किस एंगल पर आ रही है थीटा, पर आपने बोला नहीं ये आ रही है 360 यहाँ से. ये थीटा नहीं, हमने बोला यहाँ आ रही है 360 plus theta. That means the same thing. We can avoid taking this large and we can simply use a smaller one but with proper sign. Do mention this also. And from now on, for any such question, we'll use directly value of delta total. This delta total doesn't depend on theta. Answer is no. Pause देखना भाई यहाँ पर. इधर आया
let's say this angle is what, alpha, ये भी क्या हो जाएगा alpha, this is what, theta, not theta, take it phi, theta अपना ये वाला, we show करना चाहते हैं, it doesn't depend on the value of theta, that means it does on the value of alpha, it has no dependence, delta total. इधर अल्फा, ये भी अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, इसका मतलब तुम्हारा ये अंदर का एंगल कितना बन गया भाई, अल्फा, ये कितना है, फाई, अगर ये फाई है तो ये कितना हो गया, 90 माइनस फाई, ये 90 माइनस फाई हो गया तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, फाई, दिख रहा है भाई, 5 90 minus 5 ये नॉर्मल है 90 minus 5 that means this is 5 what is this alpha इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर कितना बना ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है कितना आ गया 5 minus alpha what is delta 1 डायरेक्ट क्या बना डेल्टा टोटल क्या बनना चाहिए था डेल्टा 1 प्लस डेल्टा हमने ये नहीं देखा है हमने एक जनरलाइजेशन किया हुआ है clock. What is delta 1? 180 minus 2 times alpha plus second time it is 180 minus 2 times 5 minus alpha. You see alpha is getting cancelled. This is minus 2 alpha. This is minus. This is 180 plus 180 becomes what? Minus of what? From now onwards, delta total आगे से क्या लिया करेंगे हम लोग 360 minus 25 डेल्टा टोटल अब आगे से करने की जरूरत नहीं for this type of question यहाँ क्या हो रहा है पता नहीं if angle between the mirrors is what 5 then total deviation will be 360 minus 25 360 minus 25 हमारे लिए कितना है वो 270 plus theta सेकेंड केस में 270 plus theta phi की वैल्यू कितनी रखी थी अपने को 40 360 minus 40 कितना आ गया तेरा 360 minus 80 360 minus 80 कितना बन गया 280 and this side it's what 270 plus theta सेम आंसर दिख गया 270 280 थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 10 डिग्री from now onwards you can directly use this thing as a result for this type of profile write down result with this where phi is angle between the mirrors. ऐसे हमने एक और क्वेश्चन किया था जहां पर हमने बोला था कि if you rotate the mirror by some angle then reflected ray rotate by double of that. अपना डेरिवेशन हो चुका है उसका एक फीलिंग वाला पार्ट केवल फीलिंग वाला पार्ट इसको कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था नॉर्मल से अलाइन उसको थोड़ा सा मैंने सिस्टमैटिक बना दिया है तो गेट दिस कहानी ये थी अपनी एक मिरर है अपना दिस इज द इंसिडेंट रे दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे अगर हमने मिरर को थीटा रोटेट कर दिया तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट होने वाली थी 2 थीटा मान के चलो कि ये एंगल थीटा है अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना है थीटा ये तुम्हारी इंसिडेंट रे है एंड दिस इज व्हाट रिफ्लेक्टेड रे विजुलाइज दिस अपन क्या विजुलाइज कर रहे हैं मेथड वही यूज करना है जो वहां करा है आपको अगर ये मिरर ऐसा होता
इंसिडेंट रे यही है और मिरर ऐसा ना रख के ऐसा रखा तो कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं होता। अगर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता इसका मतलब इंसिडेंट रे का पाथ तो ये है। कितने लोगों को दिख गया 2 थीटा डबल? What is this? What is this? Incident ray. That means reflected ray. When you place your mirror like this is what is the incident ray. लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे भी यही है। अगर ये रिफ्लेक्टेड रे है और फिर तुमने मिरर को यहां से ऐसा कर दिया, कितना रोटेट किया, तो रिफ्लेक्टेड रे यहां से कहां चली गई, इधर कितना डिविएट हो चुकी है, थीटा थीटा, टोटल डिविएशन कितना बनकर आ गया। You can feel that part कि how come this is double of that. ये लॉजिक समझ में आ गया? Place your mirror in this direction, then your incident ray and reflected, they both are same. This is the initial reflected ray, and then ये जो mirror है rotated by theta, reflected ray इधर निकल गई। This gives you what 2 theta. देखो अभी मैंने बोला कि जो रिजल्ट था डेल्टा टोटल वाला वो कितना था 360 माइनस, इसी अपने को केवल इतना याद रखने की जरूरत है क्यों बेकार है 360 को लेकर चले, हमने केवल क्या याद रखना है डेल्टा टोटल क्या होता है -25। इन व्हाट सेंस? क्लॉक। अभी सेकंड वाले केस में क्या होता था, लाइट ऐसे आई इधर गई, कितना रोटेट हुई, ये कितना था 90 माइनस, लेकिन रिफ्लेक्शन वाइज क्या होना चाहिए माइनस ऑफ, दैट मींस 2 फाई किसके ऊपर होना चाहिए था, फाई कितना था 90 माइनस थीटा कितना आ गया, अगेन द सेम वैल्यू। ये 360 वाला पार्ट हमारे लिए किसी काम का नहीं होता, आप ऐसे भी याद रख सकते हो या सिंपली डेल्टा टोटल क्या हुआ करता है, अगर मिरर का एंगल फाई है डबल ऑफ दैट नेगेटिव साइन, रिमेंबर दैट। समझ में आ गया? लेकिन ध्यान रखना ये -2 फाई का मतलब कैसा लेना है अपने को, क्लॉक। साइड में लिखा हुआ उसको। Now who can prove that object distance and image distance should be same from the mirror? Very elementary question. This is what object. यहाँ से आपने एक reflected ray ली, incident ray, इधर move कर रही है। Let's say distance of object from the mirror is what? D1. This is what? Image. Distance from the mirror is what? We can expect something like this, which is very easy. We need to prove that D1 is what? D2 using concept of reflection. अगर ये एंगल कितना है तो ये भी कितना होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, ये थीटा तो ये एंगल भी कितना होगा, प्रूव। Let's say this side is what? We are saying that tan of theta is what? H upon, which is also equal to H upon. We have proved that D1 is equal to what? एक साथ नोट करते हैं इधर। कर्व्ड मिरर्स में ऐसा नहीं होता है, जब हम स्फेरिकल मिरर्स करेंगे तो वहां ऐसा नहीं होता, सेम डिस्टेंस नहीं होती, वहां क्या होता है 1 upon f equals to 1 upon v plus 1 upon u। देख लिया होगा इनफैक्ट आपने। नाउ सेकंड थिंग इज, ये जो इंसिडेंट रे थी ये इधर रिफ्लेक्ट हुई, it appears to be coming from this position, this is called I. How can you prove that all reflected rays they are going to meet at the same point? ये भी हो सकता था कि ये वाली रे यहां पे मिल जाए, then you will find multiple images. If you only see what? A single image.
we need to prove that this reflected ray is also going to meet at this point only. हमने बोला पता नहीं कहाँ मीट करेगी, यहाँ कर रही है. Let's say this is new position, call it I dash. समझ में आ गया लॉजिक? कितने लोगों को दिख रहा है कि प्रूफ सामने है? This and this दोनों का प्रूफ सामने है. हमने बोला ये कहाँ मीट कर रही है? अगर ये आई डैश पर मीट कर रही है इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम नहीं है, लेकिन हमने यहाँ क्या बोला हुआ है? They both should be. इसका मतलब this d dash should be equal to what? This d, which is also equal to this d. तो बोल ये डिस्टेंस थी तुम्हारी d1 जो हमने यहाँ लिया, i का डिस्टेंस कितना लिया हमने? d2 और i dash का डिस्टेंस मैंने बोल दिया d3. This proof it first tells you that d1 is equal to what? Then it says that d1 is equal to what? समझ रहे हो क्या स्टेप यूज किए हैं? हमने यहाँ क्या प्रूफ किया है? हमने यहाँ ये प्रूफ किया है जितने डिस्टेंस पर क्या होता है ऑब्जेक्ट उतने डिस्टेंस पर क्या होती है. इसके लिए हमने बोला कि d1 is equal to what? d2. भूल जाओ, नीचे देखो, d1 किसके इक्वल होना चाहिए? Which means आप बोल रहे हो इन दोनों से that d2 should be equal to what? All reflected rays are going to meet at a single point. If you have got a plane mirror. Put on these two things, write down the question first. Prove that number one, distance of object and distance of image from the mirror are same. Second one, all the reflected rays meet at a single point behind the mirror. Around this. Look at this. We have a mirror. A mirror is at rest. यहाँ पर O for object or observer. This object is moving towards the mirror with velocity v. The question is, what is the velocity of image as seen by him? Velocity of image of this object as seen by the object and as seen by the ground observer. दो पार्ट. Easy है. अपने को बताया यहाँ पर क्या फॉर्म होगी? आपको बताया, आप ग्राउंड ऑब्जर्वर हो कि भाई इसने इधर किससे आना है? हमने तो प्रूव किया है. जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है. अगर डिस्टेंस सेम रखनी है तो जितना ये मूव करेगा उतना इसको मूव करना होगा. We'll say that velocity of image with respect to ground observer is what? Negative sign direction के लिए. Now relative motion में एक चीज की होगी, एक b से इधर आ रहा है, एक b से इधर आ रहा है, तो इसको इसकी velocity क्या दिखाई देगी? v minus of v. ये relative velocity का फॉर्मूला होता है, एक बार और लिख दे रहा हूँ. Velocity of a with respect to b ये हुआ करता है va minus vb. तो basically बोलता find out velocity of image as seen by the object. That will be VRE minus V. When you write nothing, it means with respect to. अगर कुछ नहीं दे रखा है तो सारी velocities किसके respect में चलेंगी? Ground.
What is VI? What is VI? What is VO? V, negative sign formula is आया which is coming what? Minus of 2. ये समझ में आ गया? इसको नोट करना, लेकिन पहले इसका आंसर. Object. इस बार object rest पर है. And mirror is moving in this direction with V. This is the image. What is the velocity of image in this case? Note down this and answer this. Although it's already present in the calculation. This is example number 1, this is example number 2. Example number 1, you can find out velocity of image as seen by ground observer and as seen by the object itself. Velocity of image as seen by ground observer and as seen by the object itself. In first case, mirror is at rest and object is moving. In second case, your object is at rest and mirror is moving. देखना है इधर कोई बता रहा है आंसर हाँ प्लस बी देखते हैं गलत प्लस माइनस ही तो मैग्नीट्यूड बताओ प्लस माइनस तो मैं लगा ही लूंगा that's the answer क्या उसने निकाल लिया आप भी निकाल सकते हैं I'm giving you another 30 seconds see or get the value you can directly feel it it's already present on the board पहले जो नहीं करना चाहिए वो देखते हैं केवल इससे कि आपको थोड़ा अच्छा लगे इधर देखना चाहिए ऑब्जेक्ट है हेलो अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये डिस्टेंस d है तो इमेज भी कितने डिस्टेंस पर बनेगा भाई d देखना है इधर तो हमने बोला कि मिरर यहां से यहां आ गया मिरर यहां से यहां कितना आगे आ गया x अगर ये मिरर यहां आएगा पता नहीं इमेज कहां है हमने बोला यहां आ गई i पर ब्लू आई बिकॉज़ ब्लू नहीं है तो आई डैश अपने को ये पता करना है कि ये कितना है तो आपने को पता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है सेम इनिशियली अपने को ये जो डिस्टेंस दे रखी है यहां से यहां तक वो कितनी दे रखी है d दिस मच इज व्हाट d इसका मतलब ये भी यहां से यहां तक क्या बनना था d first figure then what happens mirror moves in this direction a distance of x how much is this जितना मिरर के आगे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही मिरर के पीछे क्या बननी चाहिए थी इमेज तो ये डिस्टेंस भी क्या होनी चाहिए थी d minus x यहां से देखना how much is this d plus x ये कितना है d और ये कितना है
तो यहां से लेके यहां तक का ओरिजिनल आई तक का डिस्टेंस क्या है? ये ब्लू वाली लाइन से यहां की पोजीशन और ब्लू से आई डैश की पोजीशन क्या है? एंड देखो हाउ मच इज दिस? d plus x minus what is that? 2x. लेकिन हम ऐसे करना नहीं चाहते, हमने बोला इतना नहीं करना चाहते, हम यूज करना चाहते हैं रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट। रिलेटिव मोशन क्या होता है उसको समझा दूं एक लाइन में। आपको अपनी वेलोसिटी क्या दिखाई दे रही है अभी, लेकिन आप अर्थ पर हो, अर्थ तो क्या कर रही है? मूव, लेकिन आपको नहीं दिख रहा। ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को क्या फाइंड करता है? दैट ही इज ऑलवेज एट, रिमेंबर दिस, राइट डाउन सम बताओ। ऑब्जर्वर ऑलवेज फाइंड्स हिमसेल्फ एट रेस्ट। Observer always finds himself at rest. इधर आओ, ये आदमी किससे जा रहा था? V से। ये आपको पता है, इससे पूछते तो क्या बोलता? इससे पूछते तो क्या बोलता? ये V से मूव कर रहा है और मिरर किस पर है? तुम्हारे लिए। इससे पूछते तो मिरर कहां आ रहा होता? इसकी तरफ। या आप ट्रेन में हो, साइड के ट्रीज आपको कहां दिखते हैं? ऑपोजिट मूव करते हुए। तो अगर इससे पूछते तो बोलता है ये फिगर है। समझ में आया? इससे पूछते तो ये बनता ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर ऑलवेज इज एट अपनी खुद के लिए। अब ये रेस्ट पर है और मिरर तुम्हें लग रहा था रेस्ट पर, तो ये बोलेगा कि मिरर मेरी तरफ आ रहा है। इसका मतलब ग्राउंड वाला देख रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और मिरर रेस्ट पर है। इससे पूछ रहे हो तो ये बोलता है कि मैं रेस्ट पर हूं और मिरर किससे जा रहा है? V से। खत्म। क्वेश्चन क्या है वाला? वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय, दिखा दो ये, वेलोसिटी ऑफ एज सीन बाय, व्हाट इज द आंसर? 2v। समझ में आ गया कि किस तरह से क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है। पुट ऑन दिस, ये बना लेना साइड, but this is same as this. Mention कर लेना इस तरह से, this second part is same as this. इस पूरी चीज को फील करते हैं, तो वो कर लिया, ये कर लिया, और एक और थर्ड अप्रोच से। मान लो डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी कितनी है? डी। फर्स्ट पार्ट को फील करते हैं, फिर सेकंड पार्ट को। इसकी वेलोसिटी v है, तो इसकी तो v होगी ग्राउंड वाले को दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? वहीं से अपना बेस उठेगा। ग्राउंड वाला देख रहा है कि इसने यहां से यहां तक ट्रैवल करना है। जब ये वो यहां से ट्रैवल करके यहां पहुंचेगा, दैट मींस इट लाइज ऑन द मिरर इटसेल्फ। अगर ऑब्जेक्ट मिरर पर है तो इमेज भी कहां आ जाएगी? मिरर पर ही आ गई। जितनी देर में ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंचेगा, तुमको क्या दिखेगा? उतनी देर में इमेज भी यहां से यहां पहुंची है। इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी को क्या होना चाहिए? सेम। ये आर्गुमेंट क्लियर है? ग्राउंड वाला बोल रहा है कि जितनी देर में ये यहां से यहां आया, उतनी देर में ये यहां से यहां आया। इसका मतलब दोनों की v क्या होनी चाहिए? सेम। अब इससे बात करते हैं। जब इससे बात करते हैं तो इसको ये मिरर किससे चलता दिखाई दे रहा था? v। इससे चलता दिखाई दे रहा था, भूल जाते हैं। इसको दिख रहा था कि मिरर कितने डिस्टेंस पर है? d। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सिचुएशन ना। इसको दिख रहा था कि ये कितने डिस्टेंस पर है? d। और इसको दिख रहा है कि इमेज कितने डिस्टेंस पर है? जितनी देर में ये यहां पहुंचेगा, जितनी देर में यहां पहुंचेगा, इसका मतलब इसको लगेगा कि मिरर अगर d डिस्टेंस चला है तो इमेज कितनी देर में कितना चली है? 2d, डबल। क्यों चली है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या है? डबल। फिर से इसको लग रहा है, इससे बात करेंगे तो ये किस पर आ जाएगा? रेस्ट। मिरर कितना चला? d। जब मिरर यहां पर था, इमेज यहां थी। जब मिरर यहां आएगा तो ये इमेज भी यहां आ जाएगी। जहां ऑब्जेक्ट होगा
ऑब्जेक्ट सिंस इज ऑन द मिरर इटसेल्फ, इसलिए इमेज भी वहीं आ गई है। तो जब इसको लगा कि मिरर ने d चला है, इमेज ने कितना चला, d प्लस 2d सेम टाइम, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी को क्या होना चाहिए था, फीलिंग आ गई। अब इस फीलिंग के साथ आप पहुंचे JEE, और क्वेश्चन ये था, डरो मत, हो जाएगा आपसे, नहीं होगा, कौन सी नई बात है, 3v 2v ऑब्जेक्ट, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये ऑब्जेक्ट इधर 2v से चल रहा है, ग्राउंड वाले को दिख रहा है, मिरर किससे चल रहा है, 3v, ग्राउंड वाले को दिख रहा है। कितने क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें, velocity of image as seen by ground, as seen by mirror, तीन बना सकते हैं ना, बना दिए, शुरू हो जाओ। Find out velocity of image with respect to ground, then with respect to object, and then with respect to mirror. Velocity of image as seen by ground observer, as seen by object, and as seen by the mirror. छोड़ो इधर देखो, सीखो, इधर सीखना, ये रिजल्ट याद रखना, इनकी यूज करेंगे हम लोग, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। And you will learn a new way of using relative motion. देखिए फॉर्मूला एंड ऑल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। I'll draw this figure again. सब छोड़ के इधर देखना है। ये 2v से आ रहा है और ये 3v से, ये था। हेलो इधर, हमें जब ये दोनों चलते हैं तब मजा नहीं आता। सबसे आसान कौन सा वाला केस होता है, जब मिरर किस पर हो, उस वक्त ग्राउंड वाले के लिए कैलकुलेशन करना क्या हो जाता है, इजी। मिरर को रेस्ट पे लाने का तरीका, रिलेटिव मोशन का ये मेथड याद रखना। ये मिरर इधर जा रहा है किससे, इधर दे दे 3v, 3v क्या हो गया, इसको दिया जैसे बनाना भी लो, ले 3v, इन दोनों को मिलाकर अभी तुम्हारा जो मिरर है अभी किस पर आ गया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट किससे मूव कर रहा है, 3+2, मिरर किस पर है, तुम्हें दिख रहा है अभी, तुम ड्रॉ कर रहे हो। तुमने को बताया जब मिरर रेस्ट पर होता था और ऑब्जेक्ट 5 से चलेगा तो पक्का है इमेज भी किससे चलेगी, अगर मिरर रेस्ट पर है तो पहला सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही था, मिरर इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 5v, इमेज भी किससे मूव कर रही है। कितने लोगों को समझ में आया, वी हैव गॉट वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू व्हॉम, कौन रेस्ट पर है, ग्राउंड पे तो मैंने ट्रिक बताई है, कौन रेस्ट पर है, जो रेस्ट पर है वो क्या बनता है, ऑब्जर्वर, सबसे टॉप पे लिखवाया मैंने इसीलिए। मिरर किस पर है, रेस्ट, इसका मतलब इस बार ये आदमी कौन है, ऑब्जर्वर, तो अपने को क्या मिल गई है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू, कितनी आ गई, नेगेटिव डायरेक्शन के लिए ये आएगा और आएगा, देखते जाओ। अब इससे बात करते हैं, जो रिलेटिव मोशन सिखाया था तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं tan v, कितने लोगों को समझ में आया, किसको दिखेगा tan v,
ये किससे चल रहा है? मिरर किस पर है? जब इससे पूछते तो ये क्या करता था? डबल। तो 5 का डबल क्या हो गया? 10। हमें नहीं दिखता, मान लो अंधे हम नहीं होता। इसको कैसे लाएंगे रेस्ट पर? मेरा तरीका क्या है? इसको रेस्ट पर लाने के लिए 5 भी कहां देना पड़ेगा? इधर दे दो। समझ आ रही? तो ले समझ आ रही? कैन यू सी द आंसर? अब ये सेटअप क्या बन गया? 5 कैंसिल हो गए, तुम्हारा ऑब्जेक्ट किस पर आ चुका है? रेस्ट एंड 5v मिलकर क्या बन जाएगा? इमेज 5 + 5 किससे दिखेगी तुमको? कौन रेस्ट पर है? इसका मतलब ये ऑब्जर्वर है। अगर ये ऑब्जर्वर है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू o कितना आ गया अपना? ज्यादा अच्छा तरीका होगा डायरेक्टली यहां से बोल दो 5 का डबल, लेकिन समझाने के लिए ये बनाया। कौन बच गया? ग्राउंड वाला अगर बच गया तो ग्राउंड वाले को आप यहां से संभालो या यहां से संभालो या कहीं से। इधर ये किस पर है? लेकिन ग्राउंड वाले को तो ये किससे ज्यादा दिखाई दे रहा था? ओरिजिनल क्वेश्चन, ग्राउंड वाले को ये किससे चलता दिखाई दे रहा था? ये रेस्ट पर है, क्या करेंगे? 2v मिल जाए इसको। इधर दे दे कितना? 2v एंड रेस्ट क्या बन जाएगा? 2v और 5v मिलके क्या हो जाएगा? 7 नहीं, 5 इधर है, 2 इधर दे, क्या बचेगा? 3। ये रहा 3। 2v इधर दे, बचा क्या? 8। ग्राउंड वाले को ये इमेज इधर आती दिखाई देगी किससे? 8 से। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान रखना, मैंने इस फिगर में इस डायरेक्शन में क्या ऐड कर दिया है? इधर भी क्या ऐड कर दिया, इधर भी क्या ऐड कर दिया, और ये पहुंच गया यहां पर। दिस इज द इमेज व्हिच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद व्हाट? 8v, और ये वेलोसिटी किसको दिखाई दे रही है? ग्राउंड पर। नेगेटिव साइन लगा देना डायरेक्शन के लिए। तो नोट डाउन दिस, दो प्रोफाइल और करेंगे, बन जाएगा। कुछ खतरनाक नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। ऐड और सबट्रैक्ट करना रिलेटिव मोशन का पार्ट है, याद रखना। आप क्या करना, 5v में 2v ऐड करके इक्वल साइन लगाना एंड ड्रॉ अ न्यू फिगर। इक्वल add this 2v equal sign then draw this figure again, sequence बन जाएगा तुम्हारा। Answer this. Find out all three parts with respect to ground, with respect to mirror, and with respect to object. अब जरूरी नहीं कि आप बार बार मिरर ड्रॉ करो, एक बार में एक ही फिगर में बना सकते हो। अरे इधर कितने लोगों से हो गया? गुड। इधर देखते हैं क्या हुआ, आपसे बताना बाद में कितने लोगों का तीनों पार्ट सही थे या कौन सा जो भी पार्ट सही था। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं किसको रेस्ट पर लेकर आने की? मिरर। इधर दे दो सर, इधर दे दो सर। मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है? मिरर में कम ना रहेगा।
ये 7 7 इसका मतलब मिरर किस पर आ गया, R फॉर रेस्ट। ये इधर जा रहा है किससे, इधर 3 से जा रहा है, तो इधर किससे जाएगा 3 से। ये किसको दिखाई दे रही है वेलोसिटी, मिरर। फिर आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू जो रेस्ट पर है। तो होगा आया गुड। इधर अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। हेलो, ऑब्जेक्ट के लिए फास्ट करते हैं इस बार। ऑब्जेक्ट किससे मूव कर रहा है, 4 से। इधर आ जाओ, डायरेक्ट इसके पास जा रहे हैं, जो लास्ट टाइम किया वो नहीं कर रहे हैं इस बार। ये किससे जा रहा है, 4। इसे रेस्ट बनाने का तरीका क्या होगा, इसको इधर पर इस तरफ दे दो, कितना, ये 4 और ये 4 दोनों ऐड होकर ऑब्जेक्ट किस पर आ जाएगा, मिरर 7 और 4 तुमने दिया, उसके पास इधर बचेगी कितनी, नहीं, इधर बचेगी कितनी, 3। समझ में आया क्या किया मैंने, इधर 4v था, मैंने इधर दे दिया 4v। 4v एंड 4v क्या बन गया, रेस्ट। इधर दिया है 4v, तो 7 माइनस 4 क्या बन गया तेरा, 3। आदमी किस पर है, रेस्ट पर। मिरर क्या कर रहा है, मूव। ऐसी कंडीशन में इमेज अपने को पता है डबल से मूव करती है, तो d का डबल क्या हो गया, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय द। मैंने फास्ट कर दिया, आप आंसर भी कर सकते हो, आंसर ही आना चाहिए। कितने लोगों का आया, 6। गुड, ये तरीका भी समझ में आ गया। डायरेक्ट एक बार में उसको बोल दिया रुक जा, जिससे बात हो उसको बोलो कि रोक दो। मिरर से बात हो रही है, इसे रोक, इससे बात हो रही है, इसे रोक। जिसको रोक दोगे आपको दोनों पता है। अगर मिरर रेस्ट पर है, तो आपको पता है जिससे ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसी से क्या करेगी, इमेज। अगर आदमी रेस्ट पर है, जिससे मिरर मूव कर रहा होगा, इमेज उससे डबल मूव करेगी। We can use these two statements now. And the last one is with respect to what, ground. Ground वाले के लिए कहीं भी यूज कर लो। हमने इसको क्या दिया था, 3v, और ये मिल गया था अपने को 3 इधर। मैं फास्ट कर दे रहा हूँ भाई, ज्यादातर लोगों से हो गया है। ये वाला 3v इधर था, ये 3v इधर था, हमने इधर क्या दिया था, 3 लौटा लो, नहीं 7 दिया था, सॉरी, इधर क्या दिया था हमने, 7 लौटा लो। 7 लौटाओगे तो 7v और 3v मिलके क्या आ जाएगा, जो आपने दिया था उसको आपने लौटा दिया ऑपोजिट। 7 जैसे ही लौटा दिया, आप फिर से कहां आ गए, ओरिजिनल फिगर में, which is the ground figure। आंसर क्या आ गया, 10v। The velocity of image with respect to, कितने होगा 10। और यार तुम पूरा फिर से ड्रॉ करवाएगा क्या मेरे से, लास्ट समझ नहीं आया, सेकंड लास्ट सवाल का तेरे को इस वाले में क्या स्पेशल था, ये देखा नहीं था, लिख रहा था, लिख नहीं रहा था, देख रहा था, ये बोलता तो समझ में आ रहा होता। अब तेरे लिए मैं फिर से रिपीट टेलीकास्ट करूं इसका। सर लास्ट में किसको रेस्ट करते हैं, लास्ट में तो हर आदमी रेस्ट कर जाता है। यहाँ पे लास्ट से मतलब नहीं, जिससे पूछा उसको। अब इधर just because of you, केवल एक क्वेश्चन आएगा, तुरंत आंसर देना है। इधर है इधर 12 से, इधर है इधर 3 से। I need velocity of image with respect to mirror. बोर्ड पर देखता आंसर, ड्रॉ नहीं करना पर, सीधे आंसर। Velocity of image with respect to mirror। किसको रेस्ट पर लेकर आएंगे, कैसे आएगा भाई, इधर 12 का तो इधर दे, इधर तो गए 12 प्लस 3 क्या हो गया, मिरर अगर रेस्ट पर ये 15 से इधर जा रहा है, तो ये इधर जा रहा होगा किससे, समझ में आ रहा है अपने को। कोई फिगर बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव प्रोफाइल। ये 15 वेलोसिटी ऑफ इमेज है, किसके रिस्पेक्ट में, हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बता। ग्राउंड का मतलब तुमने इधर 12 था, इधर दिया था ना, इधर 12 दिया था, हटा इधर 27, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना आ गया, ये समझा रहे हैं यहाँ पर, फिर से देख ले। ये 12 था, इसको इधर दिया 12, इसको भी दिया इधर 12 में 3 13। लेकिन ये 12 का मतलब मिरर किस पर आ गया था, रेस्ट पर। अब ये 12 इधर दिया, मैंने लौटा इसको इधर, तो लौटा दोगे तो ये से कैंसिल करेगा,
नॉट आई स्क्वायर 12 15 12 कितना आ गया तेरा 27 ये किसको दिखाई देगी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पक्का बताओ ऑब्जेक्ट को क्या दिखाई देगी तुम्हें बताओ यार मुझे पता है वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय द ऑब्जेक्ट मिरर किस पर था मिरर 12 12 के बाद मिरर किस पर आ गया था मिरर रेस्ट पर आ गया और आदमी इससे मूव करने लगा था तुम्हारा 15 डबल कर दे 30 मिरर किस पर है 12 एंड 12 मिरर किस पर है रेस्ट जब मिरर रेस्ट पर है तो ये किससे मूव कर रहा था 15 मिरर रेस्ट पर आदमी इससे मूव करेगा उसका डबल कर 15 डबल क्या हो गया 30 या फिर प्यार से करना है या फिर एक बार और आराम से घर पे बैठ के करना नहीं आएगा मैं यही करूँ तो यहाँ ही मार लूंगा पूछ लेना लेकिन इजी प्रोफाइल है बेकार में टाइम बर्बाद नहीं करते हैं तू कर सकता है मुझे तेरे पता है तेरे पास अपना कैलिबर है लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन दिस सिली थिंग इधर नंदा we have been given two perpendicular mirrors an object is placed somewhere here this is called symmetrical position there are two mirrors angle is 90 object is placed somewhere like that it's called symmetrical position अगर यहाँ रख देंगे that will be called asymmetrical position we need to find how many images in all are formed by these two mirrors of this object टाइम नहीं मैं ही कर दे रहा हूं इधर अगर ये डिस्टेंस कितनी है रे सिमेट्रिकल है तो ये भी कितनी होगी अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ क्या बनेगा इमेज लेट्स कॉल इट I1 कितने डिस्टेंस पर अगर ये ऑब्जेक्ट है तो एक इमेज यहाँ बनेगी कितने डिस्टेंस पर d इधर क्या इस इमेज की ये मिरर फिर से इमेज बना सकता है नहीं क्यों नहीं क्योंकि मिरर के कहां हुआ पीछे अगर आप मिरर के पीछे चलेंगे तो फिर इमेज नहीं बन सकती लेकिन आप इस मिरर के आगे हो इट्स कॉल्ड M1 M2 ये जो इमेज है I2 ये I2 इमेज है किसके लिए लेकिन ये I2 अभी भी M1 के तो आगे है अगर M1 के आगे है तो I2 का यहां पर क्या बनेगा I3 किसने बनाया I3 इसने ये डिस्टेंस कितनी है ये कितनी है ये भी कितनी होगी I1 की इमेज कौन बनाएगा I1 किसके आगे है M2 कितना आगे है D कितना पीछे में बनेगी यहां पर बनेगी 4 लेकिन वो कहां बनेगी एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट सिंस इट फॉर्म्स on the I3 itself in all how many images do you see 3 images तरीका समझ में आया इमेज फॉर्मेशन का इसके अंदर और बहुत डिटेलिंग है पहले जरा कुछ चीजें बता दूं फिर बाद में आराम से नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जरा फास्ट suppose the image the object is in the symmetrical position it's asymmetrical position ये d1 हो गया तेरा और ये डिस्टेंस कितनी हो गई how many images देखते हैं इस O का यहां पर क्या बनाओगे रे कितने डिस्टेंस पर लेट्स कॉल इट इसका यहां बनाओगे एक इमेज I2 कितने डिस्टेंस पर अभी जो I2 है ये पहले वाले मिरर के लिए क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट कितना ऊपर है कितना इधर है ये D1 है इसका मतलब इमेज यहां बनेगी तेरी I3 कितना नीचे बनेगी कितना इधर बनेगी कितने लोगों को दिख रहा है आगे 3 ये कौन है सेकंड मिरर इसके आगे क्या रखा हुआ है कितना आगे रखा है इमेज कहां बननी चाहिए थी D2 पीछे कितना नीचे बननी चाहिए थी अगेन I4 forms at this point
if you have got two perpendicular mirrors, position तुम्हारी symmetrical हो या asymmetrical हो, in all how many images are formed? 3 images. Put on this fast. It's a direct result for competitive examinations. 90 डिग्री मिरर्स के बीच का एंगल, इसका मतलब कहीं रखो ऑब्जेक्ट को, यू विल गेट 3 इमेजेस. छोटी सी चीज इधर जल्दी देखना, ये तो बड़ा इजी जगह है, कोई बना लेगा, जितना आगे उतना ऊपर. बोर्ड पर व्हाट इज I2? इमेज. व्हाट इज I2? किस तरह की? रियल, वर्चुअल? वर्चुअल. व्हाट इज I2? ऑब्जेक्ट. किस तरह का? रियल. ये सीखना है. क्या स्टेटमेंट लिखा था लास्ट क्लास में, याद है? अगर आप मिरर के आगे हो तो क्या हो? रियल. मिरर के पीछे हो तो क्या हो? ये I2 इस M2 के लिए उसके पीछे है. इसका मतलब दिस I2 इज इमेज. What type of image? For which mirror? But this I2 is in front of what? अगर आप मिरर के फ्रंट में हो तो फिर आप इमेज नहीं हो, फिर आप क्या हो? पहली चीज फ्रंट में हो तो किस तरह के ऑब्जेक्ट हो आप? किस मिरर के लिए बात हो रही है? The same point acts as virtual image for M2 but is real object for same चीज यहाँ लगा सकते हैं. अब इसको एक बार फास्ट फील करा दे दो, नेक्स्ट क्लास में और डिटेलिंग के साथ देखेंगे. ठीक ना लगा? इसलिए बता रहा हूँ कि आप I'll give you a homework, कुछ लोग प्रैक्टिस कर पाए उसमें. बोर्ड पर फास्ट. इधर देखना रे, ये लाइट इधर है, ये जो लाइट यहाँ आ रही है फिर ये रिफ्लेक्ट होगी, ये हो गई रिफ्लेक्ट. सिमिलरली एक इधर जा रही होगी तुम्हारी और ये इस तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ मिलेंगी. यहाँ क्या रखा हुआ है अपना? I2. अगर कोई आदमी यहाँ होता, भूल जा मेरा, अगर कोई आदमी यहाँ होता, ये आदमी है, ये आदमी क्या देखता है? इस वाली रे को और इस वाली रे को. यहाँ दिखाने के लिए यहाँ और यहाँ है, वरना बहुत पास में होती है. एक रे ये जा रही है, दूसरी बिल्कुल ऐसे जा रही है, फिर रिफ्लेक्ट होकर ऐसे ऐसे जा रही है. और रे डायग्राम बड़े बड़े ड्रॉ करते हैं कि लाइट ऐसे गई, लाइट ऐसे गई. ये आपकी आंख है डायनासोर की. इधर पॉइंट इज कि दे आर वेरी क्लोज. समझना? तो इस आदमी को ये वाली रे और ये रे दोनों कहां से आती हुई दिखाई देंगी? I2 से. लेकिन क्या यहां पर कुछ है? फर्स्ट थिंग, एक है कहां पर? बिहाइंड द मिरर. इसलिए हमने इस I2 को क्या बोला हुआ है? वर्चुअल इमेज. अब इधर लुक एट दिस रे. ये जो रे है तुम्हारे लिए मतलब इस मिरर के लिए M1 के लिए, इस M1 के लिए ये जो रे में सामने दिखाई दे रही है, ये रिफ्लेक्टेड है या इंसिडेंट? इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन कहां हो रहा है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर. व्हाट इज दिस? रिफ्लेक्टेड. व्हाट इज दिस? रिफ्लेक्टेड. रिफ्लेक्टेड फॉर विच मिरर? रिफ्लेक्टेड रेस का इंटरसेक्शन कहां हो रहा है? बिहाइंड द मिरर. इसलिए वो क्या है? लेकिन अब ये क्या है? इसके लिए किस तरह की रे है? इंसिडेंट. इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन कहां हो रहा है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर. इसलिए ये किस तरह का ऑब्जेक्ट है? फॉर विच मिरर? M1. समझ में आ गया? दैट्स हाउ वी डिफाइन रियल एंड वर्चुअल. इस तरह से
इस क्वेश्चन को अटेंड करना एज अ होमवर्क, अगर आप रे ऑप्टिक्स में कुछ अच्छा सीखना चाहते हो। The angle between the mirrors is now 120 degrees. एक बार ऑब्जेक्ट को रखना सिमेट्रिकल पोजीशन, सिमेट्रिकल मतलब एंगल बाइसेक्टर। एक बार क्लोज टू M1, M2 कहीं भी रख दो। एक बार सिमेट्रिकल रखना, एक बार असिमेट्रिकल रखना। दोनों केस में आंसर्स अलग अलग आएंगे। मैं आंसर बता ले रहा हूं, खुद इन्वेस्टिगेट करना। When angle between the mirrors is 120, how many images in all you get? इस चीज को वेरीफाई कर लेना। घर में जाना, दो मिरर लेना, 90 पे रखना। इधर दो मिरर लेना 90 पर, अपने मोबाइल की लाइट ऑन करना, मोबाइल की लाइट को मूव करना। तो मोबाइल की लाइट को मूव करोगे तो आपको 3 इमेजेस दिखाई देंगी। 120 वाला केस मत करना, ठीक है? उसको इन्वेस्टिगेट करना and then hold the mirrors at 120 and produce the answer. थोड़ा और